Very good afternoon to all of you. I break the ice. शुरुआत करते हैं with two powerful lines. वो देख चरागों के शोले, वो देख चरागों के शोले मंजिल से इशारा करते हैं. वो देख चरागों के शोले मंजिल से इशारा करते हैं. तू हिम्मत हारे बैठा है, हिम्मत कहीं हारा करते हैं. We must never lose courage. We must never lose hope. In my hands there are some magazines. This is India Today, the latest edition, in which today on 23rd, what's the date today? 25th of July 2024, we are going to discuss about career counseling. The students, honorable teachers present here, listen with rapt attention what is being shared today. I am not going to speak about empty motivational words, poetries and philosophies. We are going to discuss about the real life conditions in our country. भारत के best colleges. I have got 1, 2, 3, 4, 5 same India Today. And I am going to keep in all the 3 corridors and 2 in the library for your reading. We don't have so much of time to read the whole of it and discuss in marathon details. The present position of our country so far as employment is concerned, there is no cock and bull story, there is no Mogeri Lal ke haseen sapne, there are no high-fi Hollywood, Bollywood movie or TV serials where the heroes, heroines and the characters live 5-star life. We are the common Indians and almost all are middle class kids. Today's career counseling is completely focused on your future, career making. As you all know, my dear daughters and sons, the present population of our country, you know we are number 1 in population. We have defeated China and we produce 1 Australia every year. You know this? 1 Australia is produced by India almost every year. 1.45 crores, 1 अरब 45 करोड़ की हमारी आबादी है. Employment work population is 46.90, मतलब 47% लोगों के पास जॉब है. ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब मिला करके 100 में से कितने लोगों के पास जॉब्स हैं? 47. तो अनएम्प्लॉयड जो जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, वो कितनी है? 53%. अगर 47 के पास में जॉब्स हैं तो घटा देंगे 100 में से, तो कितने बचेंगे महेंद्र सर?
आउट ऑफ 100 47 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे आनंद सर? 53% लोगों के पास में जॉब्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सब मिला करके 83% यूथ आर अनएम्प्लॉयड। ये सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। 83% youth today in India are unemployed। मतलब 100 में से कितने जवानों के पास नौकरी है? 83 के पास नहीं है तो कितनों के पास है? Only 17 आउट ऑफ 100 यूथ के पास जॉब है। 65.7% हायर एजुकेशन प्राप्त लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 65.7%, इसको 66 कह लो। 100 में से 66 लोग जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है, नारायण सर, 100 में से 66, यस सर, 100 में से 66 जिन्होंने हायर एजुकेशन ली। हायर एजुकेशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं, एमए, एमएससी, एमकॉम, हायर एजुकेशन उसी को कहते हैं। तो 66% लोगों के पास जॉब्स नहीं है जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं। यू आर इन 9th और इन 12th स्टूडेंट after passing out from Rainbow or any CBSE school or RPSC school, after 3 years you will be graduate, after 5 years you will be postgraduate, MA, MCOM or MSc, and you will not get jobs। आज मैं आपको एक मानसिक भूकंप, a mental earthquake, a mental shock, a mental therapy I am here to give you। Life is not in reels and in shorts on Facebook and on Instagram। Why you are laughing? Some reason? You wish to give some lecture here? Keep quiet and listen carefully। 19% people in India आर अनपेड वर्कर्स। अनपेड वर्कर्स किसको कहते हैं पता है? जो वर्क तो करते हैं मगर उनको सैलरी जीरो, जिसको पुराने जमाने में बंधुआ मजदूर और अपने राजस्थान में आगड़ी रखना कहते थे। आगड़ी जो खेतों में, फैक्ट्रियों में काम तो करते हैं, 2 रोटी 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी के बदले, साल में 2 बार ड्रेस के बदले। वो लोग कितने प्रतिशत हैं? 19%। ये गवर्नमेंट का डाटा है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश की जो स्थिति है एम्प्लॉयमेंट की, प्यारे बच्चों, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उठो, जागो, रुको मत जब तक कि एक अच्छा जॉब आपको न मिल जाए। अगर वेब सीरीज की दुनिया में खोए रहे, अगर शॉर्ट्स और रील्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब में खोए रहे, तो ये समझ लेना कि आप 83% वाली भीड़ का हिस्सा बनेंगे। 12th वाले स्टूडेंट 5 साल बाद, 9th वाले स्टूडेंट्स 8 साल बाद, 9 साल बाद। 83% में रहना है या 13% में रहना है, आज आपको ये निर्णय लेकर के घर जाना है। जहां से मैंने मेरी बात शुरू की थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हॉरिबल इन अवर कंट्री बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेरिबल इन अवर कंट्री। उसको तो रोक सकते नहीं अपन, अब जन्म हो गया है, हम भारत में हैं, यहाँ
कि ये नियम, कायदे, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज उस देश का तो मानना पड़ेगा। जॉब्स नहीं हैं तो बहुत कम, हैं तो ऊंट के मुंह में जीरा, अ फिगर अमंग सिफर। अगली बात, एज पर रिपोर्ट ऑफ 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दुनिया के सबसे ज्यादा भुखमरी से पीड़ित देश, भुखमरी जिनको 2 वक्त का नहीं, दोनों में से 1 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, ऐसे 125 देशों की सूची बनाई गई। 125 countries are the most hungry countries in the world, and you will be shocked and surprised to know what is the position of India. Can anybody tell me? Especially political science students, 11th and 12th. Can you tell me what is the position of India as per 2023 report of Global Hunger Index? Out of 125 countries, it is very disturbing, it is shocking. India stands 111. 125 देशों में से भारत 111वें नंबर पर है, जहां 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। किन ख्वाबों में हो, किन ख्यालों में हो, क्या टीवी पे, मोबाइल पे देख रहे हो, क्या दोस्तों से बातें कर रहे हो, क्या वेब सीरीज देख रहे हो? जगाने आया हूं, उठाने आया हूं, नींद से झकझोर के झकझोरने आया हूं। जागो, उठो, अपना जीवन बनाओ, अपने बूढ़े माता पिता को एक सम्मानजनक जीवन दो। मेरे बच्चों, ये दुनिया सिल्वर स्क्रीन नहीं है, ये दुनिया शो वर्ल्ड नहीं है, ये दुनिया बहुत एक कांटों का पथ है, ये दुनिया बहुत ज्यादा संघर्ष, खून और पसीना जो आपके माता पिता गुरु बहा रहे हैं, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना? तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वो तो है पोयम, हिलाती है, रुलाती है, मगर हमें जागना ही होगा अगर हमें अपने माता पिता को अच्छा बुढ़ापा देना है और अपना जीवन एक सम्मानजनक तरीके से गुजारना है। भारत अफ्रीकी देशों के बाद थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ सूडान है, सोमालिया है, जिम्बाब्वे है और बहुत भूखे नंगे देश हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर है, 191 पायदान पर है, जहाँ 190 मिलियन लोग भूखे। मैं मेरे देश, आपके देश की बात कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, स्थिति बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ में दर्द है, खेलते समय मुड़ गया था, डॉक्टर कहता है लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, एक्सरे करवाइए। आपने हाथ एक्सरे मशीन के नीचे रखा, रिपोर्ट आई कि हाँ हाथ में फ्रैक्चर तो नहीं है, पर एक बाल बराबर हल्का सा क्रैक है। तो ऐसा करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं और आपको 15 दिन हैंड मूवमेंट नहीं करना है, रेस्ट करना है। क्या डॉक्टर आपका दुश्मन है? वैसे ही अगर आज आपके गुरु आपको ये कह रहे हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, आज की तारीख में 190 मिलियन लोग भूखे हैं, 125 देशों में से हमारा स्थान 111वां है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके तन पर कपड़ा है, अगर आप 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, अगर आने जाने के लिए पापा मम्मी के पास स्कूटर है और आप टैक्सी से स्कूल आ रहे जा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आभार।
धन्यवाद पापा, धन्यवाद माँ, धन्यवाद गुरुजी, थैंक्स देना। अगली बार जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2011 में आई उसके हिसाब से भारत में 61% और 2021 में जो है वो बढ़ के हो गए हैं 64% अनएम्प्लॉयड लोग। 100 में से 64 लोगों के पास जॉब्स है या नहीं है? नहीं। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, ये तो हो गई आज की स्थिति। अब मैं केवल रुदन नहीं कर रहा हूँ, क्राई इन द विल्डरनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सॉल्यूशन के साथ आपके पास आया हूँ। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर चिराग लगाना कहाँ मना है? माना कि अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कहाँ मना है? तो पापा, मम्मी और गुरु का ये फर्ज है कि उस अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक जलाने का प्रयास करें। पिताजी मिट्टी हैं, माताजी बात है, मिट्टी के दिए में जो बाती होती है वो है, गुरु वो तेल है या वो ईंधन है, वो घी है, और सारे के सारे टीचर्स वो दिया सलाई है, वो टिंडर बॉक्स है, जिससे आपको प्रज्वलित करना है, दीप्यमान करना है, एनलाइटन्ड करना है। टॉप जॉब्स इंडिया में अभी और आगे आने वाले 5 से 10 सालों में रहेंगे, उसकी लिस्ट मुंगेरीलाल के हसीन सपने नहीं, कपोल कल्पित राजा भरतली की कथाएं नहीं, इसका रिसर्च आज की इंडिया की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस का रिसर्च मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टॉप जॉब्स, वेदर यू आफ्टर 3 years यू विल बी BA, BSc, BCom, वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं, ताकि अभी से आप जाग जाओ, अभी से आपको पता चल जाए। प्यारे बच्चों, द टॉप जॉब्स इन इंडिया फ्रॉम टुडे टू 5 to 10 years वो क्या होंगे? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब फ्यूचर पूरा प्रेजेंट उसी का है। AI शुरू हो गया है। जब इंडिया में गवर्नमेंट गिरेगी या रहेगी, इलेक्शन होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जब अमेरिका में ट्रंप आएगा या बाइडेन जाएगा या कमला हैरिस आएगी, ये सब चल रहा था, तो मार्क जकरबर्ग ने चुपके से आपके पेरेंट्स के मोबाइल में व्हाट्सएप के अंदर एक ब्लू कलर का सर्कल छोड़ दिया है। वो है AI, वो है ChatGPT। जैसे अचानक से फेसबुक ने आके, व्हाट्सएप ने आके पूरी दुनिया को बदल दिया था, वैसे ही इलॉन मस्क, वैसे ही मार्क जकरबर्ग, वैसे ही स्टीव जॉब्स अब एक मानसिक क्रांति ला रहे हैं, ला चुके हैं। उसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू आर सर्चिंग फॉर योर फादर्स बर्थडे वन सिंपल हम्बल रिस्ट वॉच। पापा की घड़ी पुरानी है, उसका बेल्ट लगभग टूट चुका है, वो बेचारे हमेशा आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, बाजार में जो भी उनका जॉब है, सर्विस है, वो करते हैं। आपने सर्च किया मम्मी का मोबाइल लेकर के एक रिस्ट वॉच, जो ही आपने हाथ घड़ी सर्च की फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सर्च करके, फिर मम्मी का बेटा देना, बुआ जी का फोन आ रहा है, फोन देना था, आपने दे दिया। अब जो ही आप फेसबुक, इंस्टा, रील्स, यूट्यूब पे जाएंगे, आपकी मम्मी के फोन पर घड़ियां अपने आप अलग अलग कंपनी की आने लग जाएगी। कोई देख रहा है, गूगल सर्च कर रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है कि आप एक बाइक ढूंढोगे तो बाइक ही बाइक आने लग जाएगी उसके ऊपर।
एक घड़ी ढूंढोगे तो अपने आप घड़ियां ही घड़ियां आने लग जाएगी आपके पास। खैर, इतना लंबा समय नहीं है कि मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊं, मगर ये कह रहा हूं कि अब फ्यूचर है एआई। आज से कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। नंबर 2, टॉप जॉब होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो आपके कॉमर्स के, आर्ट्स के, साइंस के टीचर्स कल से बताएंगे और ये आपके टॉप कॉरिडोर्स में पड़ी रहेगी इंडिया टुडे। 3rd नंबर का टॉप जॉब होगा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। 4th टॉप जॉब है क्लाउड डेवलपर। 5th टॉप जॉब है डिजिटल मार्केटिंग। ये 8-10 टॉप जॉब्स, रिसर्च जॉब्स हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते। योर प्रेजेंट टीचर्स डोंट नो। I did my MA English in 1990. I did my B.Ed maybe in 92. I did my PhD maybe in 2000. I might be highly educated principal of a CBSE school, but I do not know, frankly speaking, about software developing or digital marketing or cyber security engineering. With you we will learn. All the present teachers here, we promise that we will learn and we will share the knowledge with you about all these things. अब solution क्या है इसका? कैसे आप? How much time I have? समय कितना है मेरे पास? 5-10 minutes. 5 minutes. Very short. आज के मेरे आपसे इंटरेक्शन में न तो कोई मोटिवेशन है, न कोई हंसी मजाक की बात है, न कुछ बहुत ज़्यादा फिलॉसफीज़ की बात है, न कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट्स के इंस्पायरिंग थॉट्स हैं। मेरे पास कुछ जगाने की, हिलाने की, आपको झकझोरने की बातें। प्यारे बच्चों, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स एंड वी मस्ट सी द रियल कंडीशंस of our country, the career market, the job market. You must give the feedback to your teachers and thanksgiving to your parents for what they are doing, and must prepare yourself for the future in which you should have roti, कपड़ा, मकान। और कोविड ने बता दिया है कि एक छोटा सा 4 व्हीलर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोविड ने ये सिखा दिया है कि इन्फेक्शन से जान भी जा सकती है। एक छोटी सी कार आपके बूढ़े माता पिता को घुमाने फिराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपके पास? एक अच्छा सा जॉब आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना बच्चों, है ना? तो 2 वक्त का खाना और अच्छे से कपड़े आपके और आपके परिवार के पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, है ना? बस उसका सॉल्यूशन क्या है, वो अंतिम बात। हमें सीखना है क्या चीजें? नेट इन्फ्लुएंसर से सीखना है, गूगल से सीखना है, चैट जीपीटी से सीखना है। जो टॉप नेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे एआई के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, डाटा साइंटिस्ट के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में, क्लाउड डेवलपर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है। नंबर 2, एक्सपर्ट से मास्टर क्लास सीखनी है, मास्टर क्लास लेनी है। वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो गूगल पे अवेलेबल है, वो चैट जीपीटी पे, एआई पे अवेलेबल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अवेलेबल है। हम मेरे अगले इस लेक्चर में आपसे उन सॉल्यूशंस तक कैसे पहुँचे उसके बारे में बात करूँगा। टूल्स और टेक्निक्स वी मस्ट लर्न। ये जो नया नॉलेज है, न्यू नॉलेज ओल्ड बुक से नहीं मिलेगा, न्यू नॉलेज ओल्ड टेक्निक से नहीं मिलेगा। अगर अब युद्ध होता है यूक्रेन और रशिया में, तो क्या वो तीर कमान से होगा, तलवार भाले से होगा? वो कैसे हो रहा है? मिसाइल से हो रहा है, ड्रोन से हो रहा है। तो कृष्ण से हमें कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु, वो सब सीखना है। एक्शन इज दैट ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट बाय कंसर्न। पर टेक्निक नहीं लानी पड़ेगी,
सुदर्शन चक्र नहीं चलेगा। अब नई टेक्निक लानी पड़ेगी, नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स यू हैव टू लर्न। वेबसाइट से सीखना होगा, जॉब पोर्टल से सीखना होगा, सोशल प्रोफाइल बनाना सीखना होगा और गूगल एनालिटिक्स से हमें सीखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, टॉप 10+ कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया के, वो नाम मैं आपके सामने सिर्फ लेना चाहता हूँ। डिटेल इस बुक में है, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी लाइब्रेरीज में और कॉरिडोर्स में। हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए। कॉमर्स के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। मेडिकल के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, और भी बहुत जगह है। डेंटल साइंसेज के लिए मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली न्यू दिल्ली। इंजीनियरिंग प्राइवेट के लिए बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी। आर्किटेक्चर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। लॉ के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। मास कम्युनिकेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली। कितना बोरिंग है ना? जीवन इसी से बनेगा, जीवन पढ़ने से बनेगा, जीवन मेहनत करने से बनेगा। कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, उससे जीवन बिगड़ेगा। मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली। होटल मैनेजमेंट में आपको जाना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा न्यू दिल्ली। BBA करना है तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ न्यू दिल्ली। DCA करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। सोशल वर्क करना है तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो इंडिया का टॉप कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। और सारे नतीजे, कॉलेज और उनके रैंक और उनके स्कोर्स की डिटेल्स आपको इस इंडिया टुडे के 3 जुलाई के एडिशन में मिलेगी, जो आपके सर 50 रुपीज़ में आपके लिए ख़रीद के लाए हैं और आपको भी ख़रीद लेनी चाहिए। और नहीं खरीद सकें तो रेनबो स्कूल की लाइब्रेरी में और कॉरिडोर में आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। आज के मेरे इस स्पीच का फ़ोटो और वीडियो अपने रेनबो के फेसबुक पे हम जानबूझ करके अपलोड करेंगे ताकि आप, आपके दोस्त, आपके माता पिता ये जान सकें that in Rainbow we are not only doing the formal syllabus studies of CBSE, which is also very important, but what after your degrees and diplomas? If you have only degrees sorry, if you have only degrees, read my lips, गौर से सुनो। If you have BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, even MBA, you will not get 15,000 rupees job. If you are B.Ed, read my lips, गौर से सुनो। If you are B.Ed, M.Ed, you will not get 15,000 rupees job. क्यों राजीव सर, क्यों महेंद्र सर, क्यों सर का नाम संदीप सर, क्यों राहुल सर, क्यों नारायण सर, सर योर गुड नेम आशीष सर, क्यों आनंद सर और आपके सारे सर। MBA करने के बाद 15,000 रुपये की जॉब नहीं है। आज का कड़वा सच। कुछ दिन पहले के गुजरात का एक वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, जहाँ पे सिर्फ 10 पोस्ट थी और 10,000 लोग आए। बंद करना पड़ गया इंटरव्यू, रेलिंग टूट गई उस बिल्डिंग की। ये स्थिति है। किस दुनिया में है, क्या सोच रहे हैं? अगर अपने गुरु को सम्मान देना है, अगर अपने माता पिता का बुढ़ापा सुधारना है, जाग जाओ, उठ जाओ। केवल विवेकानंद जयंती पर शोर मचाने से उठो जागो रुको मत जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए, और एक पुष्पहार चढ़ाने से जीवन आपका नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा जब आपकी सोच बदलेगी, आपके इरादे बदलेंगे, आप में अदम्य साहस होगा,
मेरी उन 4 पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का, जो भी आप गाने वाले हो मेरे साथ। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. बहुत गुरूर है। अंतिम बात, अनएम्प्लॉयमेंट का जो तूफान चारों तरफ है, उसके नज़र 2 पंक्तियां मेरी शायद आपके दिल को झकझोर दे, शायद आपको गहरी नींद से उठा दे। बहुत गुरूर है तुझे ए सर फिरे तूफान। तूफान क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती हुई महंगाई की समस्या, बढ़ती हुई सर्वाइवल स्ट्रगल की समस्या, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की समस्या तूफान के रूप में मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। बहुत गुरूर है तुझे ए सर फिरे तूफान, मुझे भी जिद है कि उस पार जाना, मुझे भी जिद है कि उस पार जाना है। भारत में गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेना आपका भाग्य हो सकता है, मगर गरीब मरना आपकी चॉइस है, आपका चुनाव है, भाग्य नहीं है। भाग्य बदलते हैं जो शूरवीर होते हैं, जिनमें अदम्य साहस होता है। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लेना अब्दुल कलाम का भाग्य हो सकता था, परंतु भारत का राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, DRDO का डायरेक्टर बनना भाग्य नहीं, उनका चुनाव है। चूज वाइजली योर थॉट्स, योर लाइफ, योर कैरियर, मेक इट अ हिट, मेक इट सुपर हिट। मुझे पूरा भरोसा है कि आज एक आत्ममंथन का दिन और ये मेरा सत्र आपके भीतर जोश, जुनून, उत्साह भरेगा और हम एक बेहतर कल के लिए आज से ही बहुत सख्त मेहनत के साथ तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।